Hello everyone. In the previous video we understood that how to solve the equations involving modulus. Now as far as the inequations are concerned, the approach will be exactly the same, but then you need to have some basic idea about a system of equations. ये वाला जो concept है ये हमको उसकी system of inequations, in fact system of inequations, we'll be using this concept a lot. So this will be the core concept involved in the questions. So I'll recommend that if you do not know this concept, you should watch the video on this. So now let's start with the first question. अब ये कह रहा है कि mod of 2x plus 5 is less than equal to half. Now right side is a positive number. आपके पास right side अगर हम देखते हैं तो right side is a positive number. तो यहाँ पे तो हम सीधे property लगा सकते हैं ना. We can use the property directly here. Let's apply the property now. We get minus half is less than equal to 2x plus 5 is less than equal to 1 by 2. ये आ जाएगा हमारे पास, है ना. I'm using the property that mod x less than equal to a implies x belongs to minus a to a. ठीक है, तो 2x plus 5 की वैल्यू माइनस हाफ से हाफ के बीच में होगी. अच्छा, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो ये तो आसान है. हम दोनों तरफ 5 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तीनों तरफ. इन इक्वेशन में ध्यान रखना, सब तरफ नंबर्स सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. तो आई गेट minus half minus 5 is less than equal to 2x less than equal to half minus 5, which implies minus 11 by 2 is less than equal to 2x is less than equal to minus 9 by 2. And if I divide both the sides with 2, क्योंकि 2 पॉजिटिव है तो हम डिवाइड भी कर सकते हैं, है ना. तो डिवाइडिंग विद 2 gives you minus 11 by 4 is less than equal to x is less than equal to minus 9 by 4. So the answer for this question becomes x belongs to minus 11 by 4 से minus 9 by 4. This is the answer for this question. ठीक है, तो again easy question once the key idea of the properties of modulus is understood. Let's take the next problem. Now the next question says that the right side is right side is a negative number and this left hand side मॉडुलस की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती. दिस इज अ नॉन नेगेटिव नंबर. लेफ्ट साइड इज अ नॉन नेगेटिव नंबर. तो अब क्वेश्चन है कि भाई एक नॉन नेगेटिव नंबर से छोटा कब होगा? कभी नहीं होगा. इट इज इम्पॉसिबल. अ नॉन नेगेटिव नंबर ऑन द लेफ्ट साइड कैन नेवर बी स्मॉलर देन a negative number which is the right side. So therefore answer for this question is straight away no solution. There is no need of solving this. A simple observation will help you out. हालांकि ये ऐसा नहीं कि हमेशा इतनी आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे. तो लेट्स टेक द थर्ड वन नाउ. So now we move to the next problem. This is an interesting question and we'll solve it using two different techniques because both the methods are quite instructive. So let's start with the first method, method 1. Start with the first method. So this is using the property of modulus. Now you can write this in equation as minus 5 is less than x square minus 4x less than 5 using the property of mod, है ना, कि mod x की वैल्यू अगर a से छोटी है तो x minus a से a होगा. This is again made up of two different inequations. This x square minus 4x minus should be greater than minus 5 and also x square minus 4x should be less than 5. So this is a typical double inequality. ये double inequality जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं. We studied this in system of inequations. पहले इनइक्वेशन से आता है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0 और यदि हम इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करें तो डिस्क्रिमिनेंट आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज अ नेगेटिव वैल्यू. ऑल्सो द लीडिंग कोफिशिएंट दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो पॉजिटिव. सो देयरफॉर लेफ्ट साइड इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स. ये लेफ्ट साइड हमेशा ही पॉजिटिव है. तो आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर इनइक्वेशन विल बी x belongs to minus infinity to infinity.
Now we solve the second possibility on this right side. We get x square minus 4x minus 5 less than 0. ये रैशनल इक्वेशन है तो इसके रूट्स क्या क्या आ जाएंगे हमारे पास, या तो इसको स्प्लिट कर लेते हैं. वी कैन राइट दिस एज x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1 लेस देन 0. और इसको अगर हम नंबर लाइन पे प्लॉट करें तो वी गेट -1, गेट 5 से बड़ी वैल्यू रखने पे 6 रखने पे पहला फैक्टर पॉजिटिव दूसरा भी पॉजिटिव, तो वी गेट अ पॉजिटिव साइन. सबकी मल्टीप्लिसिटी ऑर्डर साइन चेंज होगा और यहाँ से लेस देन 0 के हिसाब से आ जाएगा x बिलोंग्स टू -1 to 5. एंड नाउ यू हैव टू टेक द कॉमन वैल्यू ऑफ दीज टू. तो इन दोनों की कॉमन वैल्यूज कितनी आ जाती हैं? द कॉमन वैल्यू इज x बिलोंग्स टू -1 to 5 विच इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. ये तो बच्चों एक तरीका था जहां पे हमने इसको प्रॉपर्टी से सॉल्व करा है ना. नाउ विल सॉल्व दिस सेम क्वेश्चन यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स. लेट्स सॉल्व दिस अगेन. We'll solve this question again using the concept of critical points this time. तो क्रिटिकल पॉइंट से यदि हम इस क्वेश्चन को करते हैं तो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x लेस देन 5, इससे क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे 0 एंड 4. तो हमें 3 केसेस बनाने पड़ेंगे. तो वी स्टार्ट बाय द केस विद केसेस. केस 1 if x belongs to -infinity to 0. हमने ये पहला केस लिया ना, यदि x माइनस इन्फिनिटी से 0 होता है. नाउ इफ x belongs to -infinity to 0, इन दैट केस अगर हम -1 डाल के देखें तो आप देखोगे मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी x स्क्वायर माइनस 4x की वैल्यू जो होगी विल बी, इफ आई पुट x इक्वल टू -1 वी गेट पॉजिटिव वैल्यू. तो ये मॉड ऐसे ही खुल जाएगा. यू गेट x square minus 4x less than 5. This gives you x minus 5 into x plus 1 less than 0. ये मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया, आप लिख के सॉल्व कर लेना. एंड दिस इज -1, दिस इज 5 पॉजिटिव. साइन स्कीम ये बन जाएगी इसकी. एंड वी गेट x बिलोंग्स टू -1 to 5. ठीक है, लेकिन अब आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है. द पॉइंट इज जब भी हम इन इक्वेशंस में केसेस बनाएंगे तो ये जो मेरे पास सोल्यूशन आता है, दिस सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड इफ आई अज्यूम दिस. है ना, इफ वी अज्यूम दिस देन वी गेट द सोल्यूशन. तो इसका मतलब जो आंसर होगा दैट विल बी कॉमन ऑफ बोथ. भाई एक्स की वैल्यू उसको इन इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे और इस केस को भी सेटिस्फाई करे. दोनों कंडीशन होनी चाहिए. तो इसका मतलब दोनों की कॉमन वैल्यू ढूंढनी है. तो दोनों में कॉमन वैल्यू कितनी आ जाएगी? कॉमन वैल्यूज आर -1 to 0 इस पर्टिकुलर केस में. दिस इज द फर्स्ट केस. ठीक है, देन वी गो फॉर द सेकेंड केस. नाउ वी गो फॉर द सेकेंड केस. लेट्स से केस 2. Now in case 2 we assume that x belongs to 0 to 4. Now if x belongs to 0 to 4 then x square minus 4x, अगर हम x की वैल्यू 1 डाल दें तो दिस विल बी अ नेगेटिव वैल्यू. तो ये मॉड कैसे खुलेगा? दिस विल बी माइनस टाइम्स x square minus 4x less than 5, which means x square minus 4x plus 5 should be greater than 0. एंड इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आती है नेगेटिव -4 और लीडिंग कोफिशिएंट a की वैल्यू है पॉजिटिव. तो दिस मीन्स दिस क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो ये ग्रेटर देन, लेफ्ट साइड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है. ग्रेटर देन 0 कब होगा? हमेशा होगा. तो आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर केस शुड बी x बिलोंग्स टू -infinity to infinity. इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज. लेकिन ये सोल्यूशन मेरे पास आता है if I assume this solution is obtained by this assumption. तो again I'll have to take the common value from these two. तो अब यहाँ से मेरे पास common value आती है. Common value will be 0 to 4.
मतलब एक्चुअली जब आप इन इक्वेशन सॉल्व करोगे तो जो कंसेप्ट हमको समझ में आता है वो ये है कि वाइल सॉल्विंग द इन इक्वेशन take the common values of the case and the solution, है ना। इन इक्वेशन में आपको ये रूल फॉलो करना होता है, यू टू टेक द कॉमन वैल्यूज ऑफ द केस एंड द सोल्यूशन। जैसे केस 1 में देखा, यहाँ पे दिस वाज द केस, दिस वाज द सोल्यूशन, दिस इज द कॉमन वैल्यू। इस वाले में देखोगे अगर आप तो this was the case, this is the solution and this is the common value, तो इसको भी हम बॉक्स में डाल देते हैं। and then we go for the third case देखते हैं आप, case 3, if x belongs to 4 to infinity, यदि x की वैल्यू 4 से इन्फिनिटी आ जाए। अब यदि बच्चों x की वैल्यू 4 से इन्फिनिटी आएगी तो क्या होगा, तो आप देख सकते हो कि पहले वाला मॉड फिर से पॉजिटिव ही रहेगा, वो एज इट इज खुलेगा, है ना। एंड दिस शुड बी अ पॉजिटिव वैल्यू एंड देयरफॉर वी गेट x स्क्वायर माइनस 4x इज लेस देन 5। यहाँ पे हम टाइम सेव कर सकते हैं, वी कैन सॉल्व सम सेव सम टाइम, यू कैन यूज अ टाइम सेविंग ट्रिक। कैसे कर सकते हैं, अगर आपको ध्यान हो तो बिल्कुल यही केस, एग्जैक्टली द सेम केस, देखो वी गॉट द सेम केस, यहां पे। तो इस केस का जो सॉल्यूशन आया था, फ्रॉम दिस केस आई गॉट दिस सॉल्यूशन, सो आई टेक दिस सॉल्यूशन डायरेक्टली टू द problem. So we borrow this solution directly, we get x belongs to, the solution was -1 to 5, तो यहाँ से भी वही आएगा, x belongs to -1 to 5। लेकिन हमारा assumption क्या था, assumption was x belongs to 4 to infinity and this is the solution, case solution, दोनों का common value is 4 to 5। We learned this in system of inequality, how do we take the common solutions of 2 or more sets, ठीक है। तो now your final answer becomes x belongs to, from the first case we obtained -1 to 0, from the second case we obtained 0 to 4, from the third case we obtained 4 to 5, and in fact you can combine them, भाई -1 से 0, फिर 0 से 4, 4 से 5 सब इंक्लूड होते हुए, so this is same as x belongs to 1 to 5, and this was precisely the solution that we obtained in the first method। both the methods are instructive, although definitely properties के यूज से क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो गया, लेकिन प्रॉपर्टीज के बिना भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं by making the critical points। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप क्रिटिकल पॉइंट से इनइक्वालिटी सॉल्व करोगे, यू हैव टू लर्न दिस, यू हैव टू टेक द कॉमन सॉल्यूशन ऑफ द केस एंड द सॉल्यूशन, इट हैज टू बी डन ऑलवेज, ठीक है। सो नाउ लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। So now you have to solve this in equation, you have to solve this, ठीक है। क्वेश्चन में मॉड तो ही, there is a mod involved, there is a mod at this position, but if you look at this question carefully, if you look at this question very carefully, this denominator is always positive, है ना, क्योंकि मॉड की वैल्यू नेगेटिव आती नहीं है और उसमें 7 भी ऐड कर रखा है, तो डिनोमिनेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव। इससे और राइट साइड 0 है, तो इससे मुझे एक एडवांटेज मिल जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। You can go for cross multiplication, क्योंकि इनइक्वालिटी में पॉजिटिव नंबर से दो तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लेट्स मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स विद mod x plus 7, so I get x square minus 5x plus 6 अपॉन mod x plus 7 लेस देन 0, ये हमको दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि
मॉड x प्लस 7 को राइट पे भेज देते हैं, वी गो फॉर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि मॉड x प्लस 7 पॉजिटिव है। सो नाउ दिस सिंप्लीफाइज टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन 0। दिस implies x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 लेस देन 0। इसकी साइन स्कीम चेक करते हैं, वी गेट 2 3। ऑड मल्टीप्लिसिटी 4 रखने पे पॉजिटिव, तो सब पे ऑड साइन चेंज होता रहेगा एंड यू गेट x बिलोंग्स टू 2 to 3, क्योंकि वो है ना लेस देन 0 बोले, इट इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसकी वजह से so this is the answer for this question. This is an easy question, actually more on the concept of inequalities rather than the concept on modulus. चलो एक और देखते हैं. So now we take this question. This is modulus of 2x plus 1 upon x minus 1 is greater than 2. तो इसमें क्या करते हैं? We can again solve this question by making cases. तो चलो पहले इसको critical points से करते हैं. Let's solve this by using the critical points. Method 1. तो इसमें बच्चों critical points कौन कौन से आएंगे? एक तो 1/2 और एक 1, क्योंकि देखो मॉडुलस है आपका 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 पे, ठीक है. तो मॉडुलस तो साइन चेक करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव चेक करके हटेगा. तो ये एक्सप्रेशन इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज सेम एज मॉडुलस ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ x माइनस 1. इसको ऐसा लिख सकते हैं. So now let's take this particular question, and in this problem we'll be actually using a property of, we'll use a property of modulus to understand the question. This property is, the first one is modulus of a upon b is same as modulus of a upon modulus of b, and the second property is modulus of a into b is equal to mod a into mod b, है ना. You have to learn these two properties. इनको याद रखना आसान है. This simply means कि हम we can split the modulus. split मतलब separate कर सकते हैं. split मतलब separate करना. आप modulus को separate कर सकते हो along multiplication and division. मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अलॉन्ग मॉड को स्प्लिट कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं. एंड दिस इज क्वाइट लॉजिकल ऑल्सो. अगर आप सोच के देखो तो फॉर एग्जाम्पल सपोज यदि हम देखें मॉड ऑफ 6 अपॉन माइनस 3, नाउ दिस वैल्यू इज सेम एज, दिस वैल्यू इज मैथमेटिकली सेम एज मॉड ऑफ माइनस 2 विच इज 2. अब आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो मॉड 6 अपॉन मॉड माइनस 3 विच इज सेम एज 6 अपॉन 3 विच इज 2. दिस इन द सेम वे यू कैन लुक फॉर द मल्टीप्लिकेशन, है ना. मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो अपने आप की, जैसे मॉडुलस ऑफ 4 इंटू माइनस 3, दिस इज सेम एज मॉडुलस ऑफ 4 इंटू मॉडुलस ऑफ माइनस 3 विच इज 4 इंटू 3 विच इज 12. जबकि यहाँ से हमारे पास सीधे माइनस 12 आ रहा था और इसका मॉड 12 भी आएगा. तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में मॉड को स्प्लिट कर सकते हैं. सो दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नाउ कैन बी रिटन एज, वी कैन थिंक ऑफ दिस एज 2x माइनस 1 का मॉड अपॉन mod x minus 1 is greater than 2. ठीक है. and now this has two critical points. एक तो न्यूमरेटर की वजह पे मॉड है, उसकी वजह से आ जाएगा आपके पास 1/2, और एक डिनोमिनेटर पे मॉड है, उसकी वजह से आ जाएगा 1. और इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखना है बच्चों की, ये जो डिनोमिनेटर में 1 जो है, x को 1 रखने पे डिनोमिनेटर 0 बनेगा. तो ये वाला जो क्रिटिकल पॉइंट है हॉलो सर्कल पे आएगा. यू कैन नॉट हैव x इक्वल टू 1, क्योंकि x इक्वल टू 1 रखने पे डिनोमिनेटर में 0 होगा. मैथ्स में डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता. तो 1 पे मैंने हॉलो सर्कल बना लिया. इससे क्या मुझे केसेस बनाने में आसानी रहेगी. सो नाउ वी हैव द केस 1.
and the case 1 is x belongs to minus infinity to हाफ। इस केस में क्या होगा, मॉडुलस आप ऊपर न्यूमरेटर वाला मॉडुलस तो के अंदर नेगेटिव बनेगा। अगर हम x की जगह 0 डाल के देख लेते हैं तो ऊपर आ जाएगा माइनस टाइम्स 2x माइनस 1। अच्छा, डिनोमिनेटर में भी नेगेटिव बनेगा तो वी अगेन गेट माइनस टाइम्स x माइनस 1 ग्रेटर देन 2, which implies 2x minus 1 upon x minus 1 greater than 2, which implies क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते, सोच के देखते हैं। तो आप देखोगे कि ये क्वांटिटी इस इंटरवल में यदि x की वैल्यू हाफ से छोटी है तो दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज नेगेटिव। तो आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन इन इक्वेशन का साइन रिवर्स होगा, है ना। लुक एट दिस केयरफुली, ये जो साइन है ये चेंज हो गया, ये साइन चेंज हो गया। क्यों हो गया? बिकॉज x minus 1 in the given interval, x minus 1 is a negative number, so you have to change the sign of an equation. So now this will give you 2x minus 1 is smaller than 2x minus 2, which implies minus 1 is smaller than minus 2, which is not possible, so we get no solution. This is impossible. तो केस 1 से हमको कुछ भी नहीं मिलता, वी गेट एन एब्सर्ड रिजल्ट। आप चाहो तो इस केस 1 को ऐसा भी कर सकते थे, मतलब हम चाहें, या चलो उसको बाद में देखते हैं। नाउ वी गो फॉर केस 2। इन केस 2 वी अज्यूम दैट x बिलोंग्स टू हाफ टू 1। इस केस में न्यूमरेटर वाला मॉड बनेगा, अगर हम x की जगह 0 डाल के देखें तो आप देखोगे न्यूमरेटर वाला जो मॉड है इसकी वैल्यू हाफ से 1 में, लेट्स से वी पुट x इक्वल टू 3/4, तो यदि हम x की जगह 3/4 डालेंगे तो ऊपर वाला मॉड पॉजिटिव आएगा और नीचे वाला मॉड नेगेटिव आएगा। तो वी राइट ऊपर वाला मॉड पॉजिटिव, नीचे वाला मॉड नेगेटिव, है ना। और राइट साइड पे हमको दिया होता है ग्रेटर देन 2। सो नाउ दिस इंप्लाइज 2x माइनस 1 अपॉन, अच्छा अब देखो जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी, इफ x इज स्मॉलर देन 1, तो 3/4 रखने पे ये क्वांटिटी कितनी बनेगी? नेगेटिव। यदि x की वैल्यू 1 से छोटी है तो x माइनस 1 नेगेटिव और बाहर भी नेगेटिव, तो ये क्वांटिटी ओवरऑल पॉजिटिव हो गई। यदि ओवरऑल पॉजिटिव है तो हम इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन माइनस 2 टाइम्स x माइनस 1, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है इन इक्वेशन सेम रहेगी, विच गिव्स यू 4x इज ग्रेटर देन 3 या फिर x इज ग्रेटर देन 3/4। एंड वी अज्यूम्ड कि ये सोल्यूशन तो आता है मेरे पास इन इक्वेशन से और ये है मेरे पास केस, तो दोनों की कॉमन वैल्यू आ जाएगी x बिलोंग्स टू 3/4 to 1। ये मेरे पास इस केस का आंसर आ गया है ना। एंड देन वी गो फॉर द थर्ड केस। Case 3. So now in case 3 we assume that x belongs to, sorry I cannot take, अब ये ध्यान रखना यहाँ गलती हो जाती है, 1 को हम ओपन में ही लेंगे, है ना। यू हैव टू टेक 1 इन ओपन इंटरवल। वाई? क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि ये चीज़ ओपन इंटरवल में है, यू कैन नॉट हैव डिनोमिनेटर 0। यदि x को 1 रखा तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा ना, दिस वॉज नॉट पॉसिबल, तो इसलिए आप 1 को यहाँ पे ओपन में रखोगे। और इस केस में हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा, यदि x की वैल्यू 1 से बड़ी रखी तो आप चेक करके देखो ऊपर वाली मॉड के अंदर यहाँ तो पॉजिटिव ही बनेगा और यहाँ पे हमारे पास अभी भी पॉजिटिव बनेगा अगर 1 से बड़ी वैल्यू रखें। लेट्स से 2 रख के देख लिया तो दोनों ही मॉड पॉजिटिव खुल रहे हैं, तो वी गेट प्लस 2 टाइम्स 2x माइनस 1 अपॉन प्लस x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 2। एंड इफ x इज ग्रेटर देन 1 दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव, और यदि ये पॉजिटिव है तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। सो नाउ वी गेट plus 2x minus 1 is greater than 2x minus 2, which means minus 1 is greater than 2. Minus 1 is greater than minus 2, and this is an identity. ये बच्चों आइडेंटिटी आ गई ना, -1 तो -2 से बड़ा होता ही है, और आइडेंटिटी है तो मैंने आपको बता रखा है पूरा का पूरा केस आंसर हो जाएगा। तो आंसर फॉर दिस विल बी
1 to infinity. This is the answer for the third case. So now your final answer becomes x belongs to 3 by 4 to 1 union 1 to infinity. This is the final answer. Now I could solve this question using the properties also. हम इसको property से भी कर सकते थे. कैसे? तो देखते हैं. We'll solve this question using another method. Property 2 से करके, अब इसको property से करके देखते हैं. Method 2. So you had mod of 2x minus 1 upon x minus 1. This quantity should be greater than 2. ये greater than 2 होना चाहिए ना. तो इसका मतलब हुआ, this implies कि 2x minus 1 upon x minus 1 should be less than minus 2, or 2x minus 1 upon x minus 1 should be greater than 2. ठीक है. यूजिंग द प्रॉपर्टी, हमने प्रॉपर्टी में आपको ध्यान होगा कि भी हमने ये पढ़ा था कि मॉड x ग्रेटर देन मॉड a कब होता है, जब x की वैल्यू a से बड़ी हो या माइनस a से छोटी हो. तो यहाँ पे भी वही चीज़ आ गई. और अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि x माइनस 1 के बारे में मुझे नहीं पता. तो सब चीज़ों को लेफ्ट साइड पे लाते हैं और एलसीएम ले लेते हैं. दिस शुड बी लेस देन 0. ये सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 4x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 शुड बी लेस देन 0. और यदि हम इसकी साइन स्कीम चेक करें तो न्यूमरेटर के हिसाब से तो आएगा 3/4, डिनोमिनेटर में होलो सर्कल में आएगा 1. 2 रख के देखें तो पॉजिटिव, सबकी मल्टीप्लिसिटी और तो साइन चेंज. एंड आंसर फॉर दिस बिकम्स x बिलोंग्स टू 3/4 to 1. ध्यान रखना है ना, यहाँ पे आपको ग्रेटर लेस देन दिया हुआ है, लेस देन इक्वल टू नहीं है, तो क्लोज इंटरवल नहीं करेंगे. इसी तरह से सेकंड को देखें तो 2x माइनस 1 माइनस 2 टाइम्स x माइनस 1 upon x minus 1 should be greater than 0. Now this gives you in the numerator 1 upon x minus 1 should be greater than 0. और यदि हम इसकी साइन स्कीम बनाएं तो डिनोमिनेटर की करस्पॉन्डिंग 1 होलो सर्कल, और 2 रख के देखोगे पॉजिटिव, साइन चेंज होगा क्योंकि ऑड मल्टीप्लिसिटी है. और यहाँ पे हमारे पास है यूनियन, है ना, और मतलब यूनियन. तो इसका मतलब दोनों आंसर, इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा सेकंड वाले का तो x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी, और इसका मतलब है यूनियन. तो माय फाइनल आंसर विल बी दिस यूनियन दिस, है ना, ये आंसर हो जाएगा. मतलब x बिलोंग्स टू 3/4 to 1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी, है ना. दिस इज द आंसर. ठीक है. सो अगेन वी कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन फास्टर बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज. क्रिटिकल पॉइंट सबसे सेफ तरीका होता है, नो डाउट, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट्स में एक लिमिटेशन है कि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जा सकता है. तो ऑलवेज कीप अ क्लोज वॉच ऑन द प्रॉपर्टीज, कि वो इस्तेमाल हो जाए तो बहुत अच्छा है. एंड हमेशा ये ध्यान रखो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपको एडवांटेज मिलता है ना. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमेशा एडवांटेज मिलती है. अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम एक काम और भी कर सकते थे जो कि सीधे यहीं पे हो जाता. तो लेट्स डिस्कस एक चीज़ और, मेथड 3 भी एक देख लेते हैं. थर्ड मेथड, I can write using the property this is same as mod of 2x minus 1. Let's say इधर ही कर देता हूँ मैं. So using the property of mod I can write this as mod of 2x minus 1 upon mod x minus 1 should be greater than 2. और अब ये जो क्वांटिटी है ये तो हमेशा नॉन नेगेटिव ही है. दिस इज नॉन नेगेटिव, क्योंकि मॉड की वैल्यू नेगेटिव आ ही नहीं सकती आउटपुट में. दिस नॉन नेगेटिव, और नॉन नेगेटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं. Now you can write mod of 2x minus 1 is greater than 2 times mod x minus 1, where x should not be equal to 1. Now you can solve this by making the cases or critical points. So there are many ways of thinking about the problem. The easiest way is making the cases. At times it might be lengthy, so always be comfortable with the properties also.